بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفلاح واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات۔ قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین اعظام و مؤمنات، 5 روزہ مجالس بعنوان اخلاق، تہذیب اخلاق کی آج دوسری مجلس ہے۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے لیے، بانیان افطار کے لیے، الباب صاحب، ان کی فیملی اور ان کے دیگر شرکاء کے لیے کہ اللہ انہیں اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ آپ کو بھی تشریف آوری پر اور اول رمضان سے آج تک جو بھی افطار و سحر کا اہتمام فرماتے رہے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں مومنین اور جو والنٹیئرز ہیں جو خدمت انجام دیتے رہے، جنہوں نے ڈونیشن دیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے نجات اخروی کا ذریعہ قرار دے۔ تمام اسپانسرز کے مرحومین کی، شرکاء کے مرحومین کی، خدمت گزاران حسینیہ کے مرحومین کی، بانیان ڈونرز کے مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کی معصیتوں سے درگزر فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جہاں تک گفتگو کل پہنچی تھی، پہلے کچھ احادیث ملاحظہ فرما لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق وعاء الدین، اخلاق، خوش اخلاقی، ایتھیکل ویلیوز، مورالٹی، گڈ مینرز، فرمایا یہ دین کا برتن ہے۔ دین جس ظرف میں جاگزین ہوتا ہے اس کا نام ہی اخلاق ہے۔ جس کے پاس ظرف ہی نہیں تو مظروف کیسے آئے گا؟ گویا اگر دین کو اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو ظرف اخلاق پریزنٹ کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا الخلق الحسن نصف الدین، خوش اخلاقی آدھا دین ہے۔ آدھا دین اگر ساری عبادتیں ہیں تو خوش اخلاقی صرف تنہا آدھا دین ہے۔ گویا جو بد اخلاق ہے وہ آدھے دین سے محروم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا قرینہ کا حسن الخلق، خوش اخلاقی جیسا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ خوش اخلاقی ایسی ساتھی ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں وفا کرتی۔ خوش اخلاقی انسان کو دنیا اور آخرت میں اکیلا نہیں چھوڑتی، انسان تنہا نہیں ہوتا، تنہا رہ کے بھی احباب رکھتا ہے اگر خوش اخلاق ہو۔ فرمایا ان لصاحب
हुस्निल खुल्क मिसला अजर साइम अल काइम। जो बंदा सिर्फ खुश अखलाक रहे, अल्लाह उसकी उस ड्यूरेशन को जिसमें वो खुश अखलाक होता है, तहज्जुद और रोजे का सवाब लिखता रहता है। यानी चलता फिरता रोजेदार है, बगैर रोजे के भी रोजेदार शुमार होता है अगर अखलाक अच्छा है, बगैर नमाज पढ़ने के भी नमाजी शुमार हो रहा है अगर अखलाक अच्छा। इरशाद होता है कि हुस्नुल खुल्क राअसो कुल्ले बिर, हर नेकी का सर है खुश अखलाकी। अगर खुश अखलाकी नहीं तो मुर्दा नेकी है, जिसका सर कट जाए वो मुर्दा होता है, जिंदा नहीं होता। अपनी इबादतों को जिंदा करना है तो खुश अखलाकी रखें, क्योंकि इबादतें बदन हैं, खुश अखलाकी सर है। और एक हदीस शरीफ तो पढ़ के मैं भी हैरान हुआ। फरमाया अल इस्लामो हुस्नुल खुल्क। पहले तो ये कहा था ना कि आधा दीन है खुश अखलाकी। हुजूर ने फरमाया पूरा इस्लाम ही खुश अखलाकी। यानी अगर खुश अखलाकी है तो मुसलमान है बंदा, खुश अखलाकी नहीं तो जितनी इबादतें कर ले बारगाह एज़दी या बारगाह रिसालत में वो मुसलमान नहीं है। उसे खुश अखलाकी इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो मुसलमान बने। इसी तनाजुर में एक हदीस और सुन लीजिए। जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक शख्स वारिद हुआ, सामने खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मद दीनो, मैं आपसे आज पूरा दीन पूछने आया हूं, सारा दीन मुझे आप एक जुमले में, एक लफ्ज में पूरा दीन मुझे समझा दें। आपने फरमाया हुस्नुल खुल्क, पूरा दीन है खुश अखलाकी। वजा मिन जानिबिल ऐमन, फिर वो हुजूर के दाएं तरफ आके खड़ा हो गया, मिंबर के दाएं तरफ, और कहने लगा या रसूल अल्लाह, रिपीट कर रहा हूं मद दीनो, यानी कुल दीन क्या है, मद दीनो कुल्लु मुराद, पूरा दीन क्या है। आपने रुख उसकी तरफ किया और आपने फरमाया हुस्नुल खुल्क। वो फिर ऐमन की बाद ऐसर से आ गया, यानी शुमाल से, जी हाँ लेफ्ट साइड से आ गया। उसने लेफ्ट साइड से आके फिर वही सवाल किया या रसूल अल्लाह मद दीन, ओ दीन क्या है। आपने फिर रुख फेर के फरमाया हुस्नुल खुल्क। व मिम वराए, जा मिम वराए, फिर वो पीछे चला गया मिंबर के, वो मिंबर के पीछे की जगह थी, वो पीछे चला गया। हुजूर तो जैसे सामने से देखते हैं वैसे पीछे से देखते हैं। उसने फिर कहा मद दीन कुल्लो, सरकार ने फरमाया अमा तफ़क़हुद्दीन, 3 दफा बता चुका हूं, अभी तुझे समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो आखिरी मर्तबा बता रहा हूं, अल्लाह तग़ज़िबा, अगर तू गुस्सा न करे जिंदगी में तो पूरे दीन वाला है, गुस्सा करे तो अधूरे दीन वाला भी नहीं। हुस्नुल खुल्क़े फी सलासिन, कंडेंस करके, जैसे गेस पेपर नहीं याद होगा, गेस पेपर होता था आखिर में, गेस पेपर के तौर पे फरमा दिया हदीस शरीफ में कि हुस्नुल खुल्क 3 चीजों में छुपा हुआ है। अगर 3 काम कर लो तो हुस्नुल खुल्क की मंजिल पे आ जाओगे, दीन की मंजिल पे आ जाओगे, पूरा इस्लाम आ जाएगा, बेहतरीन साथी मिल जाएगा, ज़र्फ मिल जाएगा दीन का, इस्लाम का। अगर 3 काम कर लो, कौन कौन से सरकार? नंबर 1 फरमाया इज्तिनाबिल महारिम, जितने हराम काम हैं
उनसे अवॉइड कर लें, उनसे दूरी इख्तियार कर लें, हराम की तरफ न जाएं। ये सुलुस अखलाक का पूरा हो गया। व तलबिल हलाल, दूसरा सुलूस के हलाल तलब करें, हराम के पीछे न जाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो रिश्वत है, इन कमबख्तों ने उसका नाम रखा हुआ है हाजा मिन फजल रब्बी। अंदाजा लगाइए। अच्छा, हम तो भोले आदमी, गांव के भी हैं, वैसे भी जरा गांव के और मौलवी वैसे ही बेचारे भोले ही होते हैं, सीधे साधे होते हैं। हम एक जगह काम कराने चले गए तो उन्होंने कहा कि हाजा मिन फजल रब्बी दे दीजिए तो काम हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास एक कुरान का खत्म ले लीजिए। उन्होंने कहा कुरान नहीं, पैसे लाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कितना बदनाम कर रहे हैं फजल रब्बी को। जी हाँ, तलबिल हलाल अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तलबिल हलाल, अब तलबिल हलाल से सबसे प्राइमरी तो यह है कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए। अर्निंग जो आप कमा रहे हैं वो हलाल हो। हमारे पास हमारे कई दोस्त अहबाब आते हैं, हुजूर मिठाई लाए हैं, दुआ कीजिए, हमने फलां स्टोर खरीदा है, फलां स्टोर खरीदा है। अच्छा, हमें पता है कि उस स्टोर में शराब भी बिकती है, तो हमने कहा भाई हम फिर आधी दुआ करते हैं, आधी नहीं करते कि पकड़े ना जाए। सारी दुआ कैसे करें? अगर सारा खैर होता तो सारी दुआ कर देते, आधी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ या अल्लाह जहां तक शराब नहीं है वहां तक बरकत दे। जी हाँ, तो ये अगर इंसान, ये ड्रम हो, ड्रम, ये जैसे लाहौर वगैरह में या बल्कि कराची में भी मैंने देखे हैं ड्रम पड़े होते हैं बड़े बड़े दूध के। जी हाँ, बम्बे में भी देखे मैंने दुकानों पे, तो उसमें वो मीठा डाल के या शहद डाल के प्यालों में देते हैं। अगर ड्रम पड़ा हो दूध का, बहुत अच्छी उस पर बालाई भी हो, शहद वहद भी सब कुछ पड़ा हुआ हो, उस ड्रम में अगर कोई कतरा खून डाल दे तो वो पूरा ड्रम पीने के काबिल नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सारी जिंदगी नेकियां करते रहें, एक लुक्मा हलाल आ जाए सारी नेकियां जाया हो जाती। ये जो इरफान के लोग हैं, मारिफत वाले, इरफान वाले, ये उम्मन किसी के घर से खाना नहीं खाते। मसलन मेरे वालिद जिंदगी भर उन्होंने किसी ऐसे शख्स के घर से खाना नहीं खाया पूरी उम्र में जो खुम्स का पाबंद नहीं था, खा उनका रिश्तेदार ही क्यों ना था। जिंदगी में उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये तलब हलाल में एक तो वो अर्निंग हलाल है, एक अक्ले हलाल है, एक इस्तेमाल हलाल है। जैसे हराम की जैकेटें पहनकर बारिश में आ जाएंगे, मस्जिद को भी नजिस करेंगे और हम सबको भी नजिस करके और वापस जा रहे हैं सलमान फारसी बन के। ऐसे नहीं होता है। इंसान को बड़े एहतियात से जिंदगी, जूतों का भी यही हाल है। जूते भी आप देख किस तरह जूते नजिस पहन के आते हैं, सॉक्स खराब हो रही हैं, ऊपर से पैंटें खराब हो रही हैं, शलवारें खराब, पजामे खराब हो रहे हैं। तो हलाल की तलब रखें। देखिए अजीब लफ्ज है तलबिल हलाल, यानी अकले हलाल भी हो, कसबे हलाल भी हो, इस्तेमाल हलाल भी हो, जिंदगी में इंसान की हलाल हो। ऐसे ना हो जैसे कुरान कहता है हाजा हलाल व हाजा हराम, इन्होंने खुद बना लिए हैं। जब दिल चाहता है हलाल कह देते हैं, जब दिल चाहता है हराम कह देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दो सुलुस हो गए खुश अखलाकी के, हुस्नुल खुल्क के। तीसरा बड़ा खतरनाक है अत्तवस्सुउ लिल अयाल। एक तिहाई अखलाक छुपा हुआ है अहले खाना के साथ अच्छे रहने में और उनको तंग न करने में, उनको खर्च वगैरह में तंगी न देने में, बल्कि वुसअत देने में, वुसअत ज़र्फी से रहने में, वुसअत बदल से रहने में, वुसअत अता में रहने में एक तिहाई हुस्न खुल्क है। यानी एक तिहाई इस्लाम घर वालों के साथ अच्छा रहने में छुपा हुआ है, जिसको हम कभी एथिक्स काउंट ही नहीं करते। जब आप एथिक्स में जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि एक एथिक्स है फैमिली एथिक्स, एक एथिक्स है सोसाइटी का एथिक्स, एक
घर का एथिक्स है, एक फ्रेंड्स के लिए एथिक्स है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एथिक्स है, एक कंपेनियन के लिए एथिक है, एक क्लास फेलोज के लिए एथिक्स है, एथिक है उस्ताद के लिए, एथिक है शागिर्द के लिए, एथिक्स हैं वालिदैन के लिए, एथिक्स हैं औलाद के लिए, एथिक्स हैं रिश्तेदारों के लिए, एथिक्स हैं बॉस के लिए, एथिक्स हैं एम्प्लॉइज के लिए। एथिक्स इतना बड़ा चैप्टर है कि 1000 शोबे एथिक्स के हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, और इस टॉपिक को हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। जब पूछा गया कि सरकार ये बताइए कि रुए जमीन पर चलता फिरता जन्नती कौन है, तो पहली निशानी ये बताई, वजहुन मुंबसित, जो खिला हुआ चेहरा रखता हो वो रुए जमीन पे चलता फिरता जन्नती है। खुश अखलाकी गुनाहों को ऐसे मेल्ट कर देती है कि जैसे वेदर बर्फ को मेल्ट कर देता है। और फिर यह भी कहा कि जैसे बर्फ पिघल जाती है वैसे खुश अखलाकी की तबिश से गुनाह भी पिघल जाते हैं और बह जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि गुनाह कहीं एग्जिस्ट ही करते थे। बर्फ का तोदा होगा तो नजर आएगा ना, जब बर्फ ही पिघल गई सारे गुनाह बह गए, इंसान पाक हो गया खुश अखलाकी की वजह से। मुआविया अला वजन हाविया के दरबार में बाद शहादत मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह गुफ्तगू हुई। किसी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की बुराई की खुशामद में ताकि ये खुश हो जाए, मगर अजीब इत्तेफाक देखिए वो भी छुपा न सका इस चीज को। उसने कहा कि नहीं, अबुल हसन की बुराई मत करो। ये मुआविया कह रहा है, दुश्मन कह रहा है, वल्लाह काना हशन बशा, अबुल हसन बहुत खुश अखलाक थे। यानी कातिल वजूद को सर पे जर्ब लगा सका मगर अली के किरदार पे जर्ब न लगा सका। मौला अली के चाहने वालों को ज़रीफ़ुत तब, खुश अखलाक, हसीनुल खुल्क, खुल्क हसन का मालिक होना चाहिए। देखिए हुजूर ने नमाज भी पहुंचाई है, रोजा भी पहुंचाया है, हज को भी पहुंचाया है, ज़कात भी पहुंचाई, खुम्स भी पहुंचाया, एतिकाफ के हुक्म भी पहुंचाए, अमर नहीं पहुंचाई, विलायत व बराअत पहुंचाई, जिहाद के आकाम पहुंचाए, सिला रहमी पहुंचाई, वालिदैन का एहतराम पहुंचाया, तिलावत कुरान, आकाम शरीयत सब पहुंचाए कि नहीं? कभी नहीं कहा इन्नमा बुइस्तु ले इकामत सलात, इन्नमा बुइस्तु ले तबलीग सौम, इन्नमा बुइस्तु ले इकामत हज, ये नहीं कहा, बल्कि हमेशा क्या कहा, इन्नमा बुइस्तु ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक के तकाजे पूरे करने के लिए भेजा गया। यानी बंदा अगर अखलाक रखता हो तो खुद ब खुद नमाजी भी बन जाएगा, रोजादार भी बन जाएगा, हाजी भी बन जाएगा, मोतमिर भी बन जाएगा, मोतकिफ भी बन जाएगा, मुजाहिद भी बन जाएगा, ज़कात भी देगा, सदकात भी देगा, खैरात भी देगा, आमिर बिल मारूफ भी हो जाएगा, नाही अनिल मुनकर भी हो जाएगा, तवल्ला तबर्रा करने वाला भी हो जाएगा, माँ बाप का एहतराम करने वाला भी हो जाएगा, माँ बाप औलाद के हुकूक अदा करने वाले हो जाएंगे, उस्ताद शागिर्द का हक अदा करेगा, शागिर्द उस्ताद का हक अदा करेगा, मियाँ बीवी के हुकूक पर डाका नहीं मारेगा, बीवी मियाँ के हुकूक को खत्म नहीं करेगी, अगर इंसान में अखलाक पैदा हो। हमारे यहां जब से हम नॉर्थ अमेरिका में आए हैं हमें नई नई शरीयतें देखने को मिलती, नई नई शरीयतें। एक मर्तबा एक कपल का झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे अहले खाना ने हमें घर आने से मना कर दिया। मैंने कहा क्यों मना किया है? कह लेंगे इसलिए कि इनका जॉब खत्म हो गया। मैंने कहा जॉब करोगे जब शुरू तो आ जाना घर में। तो ये निकाह में जॉब की थोड़ी शर्त होती है,
अल्लाह से डरना चाहिए। कुछ ये भी एथिक्स होते हैं, मैट्रिमोनियल लाइफ के भी कुछ एथिक्स हैं, औलाद के भी हुकूक हैं। माँ बाप हमेशा ये शिकायत करते हैं औलाद बात नहीं मानती। आप जब अल्लाह ही की बात न मान के औलाद की तरबियत नहीं कर रहे तो औलाद कैसे बात मानेगी? पहले आप अल्लाह की बात मानिए ना, अल्लाह के अहकाम को मानिए, जो औलाद के हुकूक है वो आप ही अदा कीजिए। ये ऐसे नहीं होता कि उस्ताद हमारे यहाँ वो डंडा लेके खड़े होते थे जब हम प्राइमरी मिडिल में थे, बगैर किसी जुर्म के भी वो डंडे मारे जाते थे। ऐसे नहीं होता। इस्लाम डंडे मारने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उजागर करने का मजहब है, और ये इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, नफरत का मजहब नहीं है, अखलाकियात का मजहब है। कैसे दुश्मन की बेटी आती है उसका सर बरहना है, हुजूर अपनी अबाए मुबारक से कहते हैं इसका सर ढांप दो। जब कोई पूछता है कि ये तो दुश्मन की बेटी है, तो आपने फरमाया अगर अपने बाप के दरबार में भी सर बने रहे और मोहम्मद अरबी के दरबार में भी सर बरहना हो तो आदिल और जालिम में फर्क क्या होगा? इसलिए हुजूर के पास एक डेलीगेशन आया अतिब्बा का, डॉक्टर्स का, फिजिशियंस का। वो गैर मुस्लिम थे। तो हुजूर मस्जिद से बाहर हुजूर ने एक जगह बनाई हुई थी जहां हुजूर की मुलाकात होती थी। जो डेलीगेट्स नॉन मुस्लिम आते थे, क्योंकि मुस्लिम में दाखिले से इश्काल है तो जाहिर है कि हजरत बाहर मिलते थे। बाहर जब वो डेलीगेशन आया तो हुजूर ने अपनी जो अबा थी, काली कमली जिसको कहते हैं, वो बिछा दी उनके लिए कि इस पे बैठो। जैसे उन्होंने देखा कि ये अपने कंधे से अबा उठा के हमारे नीचे रख रहे हैं, तो उन्होंने, हुजूर ने कहा कैसे आना हुआ? कहा सरकार आना तो किसी और मकसद के लिए, आए तो किसी और मकसद के लिए थे, आना किसी और मकसद के लिए था। जब आप अपने कंधे से अबा उतार रहे थे, हम दिल से मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। ये अखलाक दिखाना है। मौला अली फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह, खालितुन्नासा मुखालततन इम्मुतुम माहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम। है हमारे चाहने वालों, ऐसे मेल जोल रखो अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, ऐसे प्यार और मोहब्बत से रहो कि जब तक जिंदा रहो तो कोई महफिल तुम्हारे बगैर अच्छी न लगे, और जब मर जाओ तो कोई आंख ऐसी न हो जो तुम्हारे गम में अश्कबार न हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम सब ने एक दूसरे के साथ इतना इजहार वाबस्तगी करना है कि आइम्मा अतहार का जो इरशाद गिरामी है वो पूरा हो जाए कि हमारे शिया तो आपस में रिश्तेदार हैं, और फिर फरमाते हैं कि जो दूसरे लोग हैं अगर वो आपके मजहब में रिश्तेदार नहीं हैं, गैर मुस्लिम भी, हत्ता के कम अज कम उनका और आपका जद और जद्दा तो एक ही है ना। वैसे तो रिश्तेदार हैं सब, औलाद आदम तो हैं, औलाद हवा तो हैं, उनका एहतराम रिश्तेदारी की वजह से कर लो। शियों का एहतराम हमारी कराबतदारी की वजह से कर लो। ये जो एथिक्स का टॉपिक है इसलिए बहुत अहम है, इसलिए कि ये थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। ज्यादातर इसमें प्रैक्टिकल है, इसमें हमने अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। मैं जब कुम गया तो मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि नाइब इमाम, मुज्तहिद आज़म, आयतुल्लाह उज़्मा, एक नहीं बल्कि हर एक कम से कम 4 से 5 तो बड़े मुज्तहिद आज़म थे उस वक्त अवाइल इनकलाब में। अब जिसको मिलने जा रहे हैं वो हम जैसे छोटे तालिब इल्म के लिए खड़ा हो रहे, पूरे खड़े हो जाते। ऐसे नहीं कि ऐसे या अल्लाह कहें आधे खड़े, पूरे खड़े हो जाते। जब हमने देखा कि ये 80-80, 90-90 साल के मुज्तहिद खड़े हो रहे हैं तो हमें तो बड़ी शर्म आई। हम तो अपने मुक्तदियों के लिए नहीं खड़े होते। हम समझते हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं इनका एहतराम हम पर जरूरी नहीं है, और ये हम जैसे छोटे तालिब इल्म के लिए एहतराम में खड़े हो रहे हैं, खड़े हो जाते हैं बाकायदा। तो ये चीजें जो हमने जिंदगी भर गलत सीख ली हैं उनको किक आउट करना है अपने वजूद से। इसका नाम अखलाक है। देखिए, मैं आज आखिरी बात ये अर्ज करूं, बल्कि वक्त हो ही गया,
آخری بات کا ہی وقت نہیں رہا، انشاءاللہ کل میں مزید آگے بڑھتا ہوں. آج میں صرف 2 جملے آپ کی خدمات عالیہ میں صرف استجابت کتنے اچھا ہے ابھی 6 منٹ، چلیے ٹھیک ہے پھر تو کل کا جو ٹھیک ہے کل کا پھر عنوان کر لیتے ہیں. دیکھیے کل کے لیے عرض کر دیتے ہیں کہ یہ جو سورت میں نے پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی ضحا کی، ضحا یعنی روشنی. یہ قسمیں ذرا گنتے آئیں، شمس کی اور ضحا کی قسم، والقمر اذا تلاہا، قمر کی قسم، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا. یہ ساری قسمیں 10 سے 11 قسمیں ڈائریکٹ کی جائے تو 10 ہیں، 9 اگر بالکل ڈائریکٹ 9 ورنہ 11 قسمیں ہیں اگر دوسروں کو بھی ملایا جائے. ان 11 قسموں کے بعد قرآن نے سب سے زیادہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں ایٹ اے ٹائم، یعنی اللہ نے. جیسے جانتے ہیں والفجر ہے، اسی طرح والضحا ہے مثلا، والعصر ہے مثلا، کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4. یہ 11 قسمیں پورے قرآن میں صرف ایک جگہ اٹھائی ہیں اللہ نے. قسم اللہ کھا رہا ہے، اللہ بندہ نہیں کھا رہا، اللہ قسم کھا رہا ہے. اور پتہ ہے 11 قسموں کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ فرما رہا ہے کہ نفس کو، یاد ہے نا نفس کل بعد، یہ جو نفس ہے اس کو فجور کا الہام بھی کر دیا ہے اور تقوی کا الہام بھی کر دیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا فقد خاب من دساہا. 11 قسموں کے بعد اللہ نے فرم کیا ہے آپ کے میرے لیے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا یہاں بھی رسوا ہو گیا، قیامت میں بھی رسوا ہوگا. یعنی ایتھکس کے لیے اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. اتنا اہم موضوع ہے ایتھکس کا. باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہو جائے گی. اور صرف قبولیت دعا کے لیے کہ صرف مچھر کا پر بھیگ جائے امام حسین کے ذکر سے. کل انشاءاللہ مرثیہ بھی ہوگا. سلام بھی آج معذرت چاہتے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی اور پڑھنے والے بھی ذرا کم تھے تو معذرت بھی چاہتے ہیں، جو تھے بھی ان سے بھی. اللہ کریم آپ سب کو اجر و جزا دے. آج کے بانی مجلس کو، بانیان مجلس کو، بانیان افطار کو اللہ اجر دے. تمام بانیان مجالس و محافل و دروس و افطار کو اللہ تعالیٰ و بانیان سحر کو اللہ تعالیٰ اجر و جزا دے. اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے. طویل زحمت نہیں، صرف ایک جملہ یہ اور پھر تتمہ میں دوسرا جملہ. ایک جملہ یہ ہے کہ جب شمر کو مختار کے دربار میں پکڑ کے لایا گیا تو شمر نے پوچھا کہ یہ بتا میرے مولا حسین کو ذبح کرنے میں تجھے کتنی دیر لگی. تو ایک جملہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، علی اکبر والا، وہ نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا میں تلوار مارتا تھا تیرے مولا کی گردن پہ اور تلوار گردن پہ چلتی نہیں تھی، کافی دیر میں نے یہ پریکٹس کی. آخر میں نے پوچھا کہ اے غریب تیرے گردن پہ تلوار کیوں نہیں چلتی؟ تو تیرے امام نے جواب میں کہا تھا اماں ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ ہٹا لے. یعنی حسین کی ماں آئی تھی جس نے اپنے ہاتھ حسین ابن علی کی گردن پہ رکھ دیے تھے. وہ جو وار ہوتے تھے شمشیر کے وہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ لگے. یہی وجہ ہے کہ کہتے یہی ہیں کہ جب کوئی نہیں رہ گیا تھا تو غریب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آیا میرے سارے رشتہ دار چلے گئے. تو ایک مرتبہ نحیف سی آواز آئی، جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے میرے لال وہ کربلا میں موجود. ربنا وتقبل دعا.